हाइप बनाएंगे ना जूम ये ऐड हो गया सब 4 लोग 5 लोग ऐड हो गए अभी सर So good afternoon everyone. टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है कितना थोड़ा फोन आया मेरे पास बाहर आवाज आ रही है तो सामने देखा क्या बोली क्या नहीं हो Good afternoon everyone. Kindly mute your mic. So I think 21 people is out there. (23). So I will wait for one more minute because it's a first lecture, an introductory lecture. So I would expect that everyone should be on time from next lecture and onwards. Okay, all set, all good. I'm sharing one of my screen just to introduce something about your syllabus and all, and I will discuss different components in a systematic form. Okay, I hope you can see my screen. Yes, sir. Yeah, okay. Yes, sir. So Yes, this sir. is a course on programming C. Usually it is not recommended. Okay, anyway, so this is a course on programming in C, and if you could visualize that there are 5 sections. Okay, so first section is something introduction to programming, fundamental of C programming, and array function, storage class, file, preprocessor, and all. Okay,
see why the syllabus is there and what is the meaning of these textbooks and reference books and what is our course content and objective, and finally you could see that there is a course outcome. So course outcome tells us that after the completion of course what will be in your hand if you will honestly read the subject. Okay, so I will not go in the details of these course objective, but the single point agenda that I would like to convey you is this is programming in C, and this is one of the most fundamental subject of computer science. Like mathematics, this is again a very fundamental subject of computer science, and everyone must know this subject, no matter in which field you are working, no matter in which company you are working, no matter which interview you are going for. They will ask, everyone will ask questions from C programming. That is must. First thing is must. So be serious about the subject. Secondly, uh, hope some of you have exposure of programming in your class 10th and 12th, because nowadays CBSE and few state boards, ICSC, they all have introduced programming in their uh, 10th and 12th standard. So how many of you are aware? Could you please send me a reply on chat that how many of you were opted programming as a subject in your class 12th or class 10th whatsoever? किसका किसका 12th में या 10th में प्रोग्रामिंग का एक्सपोजर था, किसने ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट लिया? Just give me some idea. Just write in the chat box that yes, I did or I know. Okay, so majority is yes, Rohit is yes, Shreyas yes, Python किया, Pathanwala, Karan no. Don't worry Karan, we will start from the very basic. Phase 1 and Divya is yes sir, studied Java. ठीक है, Java जिसने पढ़ा उसके लिए भी आसान होगा. नहीं पढ़ा, I am from maths. Okay Arihan, don't worry. And Python in 11 12, good. And C++, okay, again fine. Rohit, no sir, don't worry Rohit. Switvik, never, don't worry. Shreyas, yes sir, for Python 11 12, okay, that's fine for us. Yes sir, Java. Ayush, Manav is yes, Arihan, I am from math, don't worry if you are from math. I also study C Sharp and Python on my own. That's great if you have such an interest, and you will enjoy C, I think. Divya Patel, Ravin, Java, C++, Python. Oh, you know very much. Anyway, we will synchronize the knowledge. If you know programming in this course, we will know crux of programming. J1 11 12. No, sir. I am hers. Don't worry. Karan on a school only taught bit of HTML, CSS. HTML and CSS is totally different from these programming languages that I will tell you later. Don't mess with the programming language and scripting. HTML and CSS are scripting. Karan Ahuja, that I am just replying to you. So programming is different, scripting is different. So programming, whenever I'm saying programming, it's C, C++, Java, Python, and all. So Arjun is no sir. Shama, yes sir. Tezwan, no idea about it. Don't worry, Tezwan. Be honest with this course and we will have a good understanding. Aman, no idea. Sir, does C and C++ similar to each other? Ayush, C++ are similar in some sense. Some sense. They are syntactically different and they are their architectures are again different.
C is one of the fundamental language, the first ever highly applicable fundamental language. So STM is a markup language, not programming language. Yeah, good. So it's a scripting kind of component, Ravindra. It's not a programming language. And Mahendra is saying, midday, no exposure. Don't worry, Mahendra. We will have. Okay, I use. So, okay, I know that there is a mix of students, those who know programming and those who do not have any exposure and they never, I am expecting that few of you never heard actually the word programming, but don't worry. In this course, we have 4 hours a week and I expect that if you work honestly, then we can learn easily. Okay, so anytime, see, this is a practice based course. Whatever I teach you, you must have to practice. I will recommend you the related software. You just install your software, and every week I will fix a timing where you could just send me problems by in advance, uh, and I will try to have a doubt clearance session where I will share you my screen and write, and I will write a program on the screen on software and tell you that okay, this is the problem that you are facing and how to improve this problem. And also there are 2 components of this course. One is theoretical session where we have to learn theoretical concepts behind the programming, and another part is our practical sessions where we have to actually execute the code. So this is not an easy course, that I frankly tell you, this is not an easy course. This many people have a fear about C. So learning Python is quite straightforward because Python is not giving you much detail. ये इस तरह से है कि जैसे हम लोग मार्केट से अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाना होता है, तो सपोज इंडियन कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करती है तो वो मदरबोर्ड खरीद लेती है. They just purchase a motherboard from China and all, and they just assemble everything in India. So Python is like that. We are purchasing everything and just our job is to bolt it. बस इसको स्क्रू को लगा दिया, किस पिन को कहाँ लगाना है लगा दिया. That's all. Application is ready. But C programming is a bit different. It has nothing ready-made. You have to design each and everything by your hand only. Okay, so इसका ऐसा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड भी खुद बनाना है, उसका कैबिनेट भी खुद बनाना है, स्विचेस भी खुद बनाने हैं और सब को असेंबल करना है. This is just an example, in a real life example. And I don't mean to say that you will use C programming to design a electronic board. That is a different concept. Okay, so I would suggest that don't panic and be with me, and we will learn something very good in this lecture. I'm sharing you another screen where there is a PPT. There is nothing written over here because I will use my pen to write for you. And at the end of every lecture, I will share this PPT to the Google Classroom. So you can visit Google Classroom. I will send you that link, and there you will find all the lectures. Please don't write anything. This is for me. Whenever I will ask you, then I will give you ample opportunity to write the things. Clear? Someone use something else. Don't do it. It's a very lengthy course. So anyway, C, the name of language. So this is what is this? It's a programming language. What is English or Hindi or Bangla? A language. It's a language. What kind of language? It's a natural language. It's a natural language. Human speak this language. Human language. Sorry? इंसानों की भाषा.
सॉरी, ह्यूमन लैंग्वेज सर, या ह्यूमन इंसानों की लैंग्वेज, भाषा। एंड प्रिसाइजली इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। और नेचुरल लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इसमें आप एक ही सेंटेंस को बहुत तरीके से फ्रेज रिफ्रेज करके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी दो तीन बातें यहाँ समझिए, मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसको बोलूंगा मैं फॉर्मल लैंग्वेज, इसलिए मैं इस बात का डिस्कशन करूंगा फॉर्मल 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 लैंग्वेज, और इसको मैं बोलूंगा नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्योंकि ये फ्री स्टाइल लैंग्वेज है, और इसमें एक ही चीजों को बहुत तरीके से कहा जा सकता है, कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। वैसे तो कहते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देयर आर ग्रामर्स, बट ग्रामर्स डू नॉट डिफाइन एवरीथिंग, एवरी सेंटेंस एंड मीनिंग ऑफ एवरी पैराग्राफ ऑफ दिस लैंग्वेज, ठीक है। क्या आप जो मैं जो भी बोल रहा हूँ क्या ऑलवेज ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? नहीं, speaking is not always do not always flow with the grammar and all. पर्पस क्या है लैंग्वेज का, अभी देखते हैं कि पर्पस क्या है। पर्पस है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई ए है और बी है, इफ ए इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, then we could, and is he want to convey something to B, then B must know English. And if there is a scenario, if someone is speaking in Chinese and B do not understand Chinese, B only know English and it do not understand Chinese, then what will happen? No conversation. Translator is No required. conversation, No communication. Yeah, we cannot understand anything now. So this the same thing happened with our computer. So A is our computer. A is us. The people are A. We know English, but computer do not know English. What we know, we could say we could understand only natural language. In general, we use natural language. लेकिन कंप्यूटर को नेचुरल लैंग्वेज समझ नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? ओनली इंस्ट्रक्शंस, Binary code. बाइनरी कोड। आगे वो ज्यादा डिटेल है, स्पोकन लैंग्वेज या वन। सो इसको समझ में आता है इंस्ट्रक्शन। मैं जो भी इंस्ट्रक्शन उस कंप्यूटर को दूंगा वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। स्टेप 1 ऐसा करो, स्टेप 2 ऐसा करो, स्टेप 3 ये करो। सो लाइक दैट कंप्यूटर इज लाइक दैट, दे फॉलो ओनली इंस्ट्रक्शंस। इसको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। और अगर मैं थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट में बोलूं और थोड़ा एडवांस सेंस में बोलूं, तो आज की डेट में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, यस सर। Yes, sir. है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कैसे कंप्यूटर स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कैसे कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज को समझना स्टार्ट कर दे, और इस फील्ड को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, मैं भी बस आपको समझा रहा हूँ, और अभी नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्लाइड में डायरेक्टली एज ए पीडीएफ आपके क्लासरूम फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। तो जस्ट सुनो कि क्या हो रहा है मैटर। हम बोलते हैं इंग्लिश, we cannot understand English, this is our computer that cannot understand, this is us, we could understand English but computer can't। तो क्या करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन होगा, हम कैसे इसको इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं? So this is the main idea behind designing a programming language। तो अभी एक स्ट्रक्चर आता है कि कुछ ऐसा करते हैं जिसको हम भी समझ सके और बी भी समझ सके, यानी अपना कंप्यूटर्स भी समझ सके, ठीक है, और हम लोग भी समझ सके। कुछ तो ऐसा लाना हो। सो दैट लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकता है।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन की पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो अभी देखो नया जब कोई कंपोनेंट आ गया, तो हमें इंग्लिश तो आता ही था, लेकिन इसको इंग्लिश नहीं आता था। अब इसको इंग्लिश सिखाना पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। अभी कोई ऐसा टेक्निक अवेलेबल नहीं है कि कंप्यूटर को हम इंग्लिश सिखा दें। और इस जो वो फील्ड है जिसपे काम चल रहा है वो एआई के अंदर आता है, और दैट इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये फील्ड अभी बहुत काम कर रहा है, और इसके कारण ही हमारा जो फोन में सीरी या कोर्टाना जो भी सॉफ्टवेयर्स है, या फिर गूगल असिस्टेंट जो है, जो हमारा वॉइस रिकॉग्निशन करता है, वो सारे फील्ड इसी थ्योरी पे काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उनका काम ही है दिन रात कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, इस पे काम करना। मगर दे आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, 100% करेक्ट नहीं हो पाते, सो नॉट ट्रू। अभी ये प्रॉब्लम है ना कि अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कंप्यूटर हमारा उसको सही से समझ नहीं पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लो कि मैं एक एप्लीकेशन बनाया किसी इंडस्ट्री के लिए, कोई फैक्ट्री चलना है, या अलेक्सा बिक्स पे गुड। तो अगर मैं कोई फैक्ट्री चलाने का सॉफ्टवेयर बना रहा है और वो कोई सेफ्टी मेजर है कि एक आदमी है, वो एक आयरन रॉड को रखता है और ऊपर से एक मशीन आती है, जब आयरन रॉड नीचे अवेलेबल होता है तो उसको पंच करता है। अब अगर 100% श्योर शॉट सिस्टम नहीं होगा तो बिना आयरन रोड के भी वो पंच कर सकता है। हो सकता है उस समय ह्यूमन का हैंड हो या कुछ और हो, या कभी कभी आयरन रोड रखेंगे तो पंच नहीं होगा। तो अगर तो जरूरत किस बात का है यहाँ पे? जरूरत इस बात को समझना है कि डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। कि सिस्टम मेरा क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब गारंटी है 100%, जो काम वो करेगा उसमें 100% वही करेगा जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब सम ऑफ द टाइम, लेट 99% टाइम वो जो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसा ही काम करेगा, और 1% टाइम पता नहीं वो क्या करेगा नहीं करेगा। दिस सिनेरियो इज नॉट डिजायरेबल। दिस इज अनडिजायरेबल। हमें ऐसे सिस्टम्स नहीं चाहिए जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक के लिए काम करे। हमें डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम चाहिए। भले ही हम कोई सिस्टम ना बनाए, दैट्स फाइन, लेकिन जैसे कि मान लो आपने एक सपोज हमारा एक ऑटोमेटेड कार है। ऑटोमेटेड कार अगर वो 100% टाइम सेम फंक्शनिंग नहीं करेगा, सपोज जो आपका फोन है, आप अगर टच करते हो तो ऐप खुलता है, क्लियर। तो अगर वो 100% टाइम, अगर कभी आप टच करो एक ऐप को और खुल जाए कोई दूसरा ऐप, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, है ना। तो जब जिस ऐप को टच किया दैट मोमेंट वही खुलना चाहिए। सो दैट इज अ डिटरमिनिस्टिक सिस्टम। 100% श्योर दैट जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो वो कंप्लीट होगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, हम लोग देख रहे थे कि एक हम थे और बी था कंप्यूटर, हमको कम्युनिकेट करना था। कुछ ऐसा था जिससे कि मेरी बात ये बी समझ जाए। मैं अगर बी को कुछ काम करने बोलूंगा, इफ आई विल सेंड सम इंस्ट्रक्शन टू बी, जैसे मैं मेरे पास घर में अगर कोई काम करने वाला आदमी है, सपोज देयर इज अ पर्सन इन आवर हाउस, वो कोई स्टाफ है हमारा, तो कोई काम करता है, क्लीनिंग करता है। अगर वो क्लीनिंग कर रहा है तो मैं जो इंस्ट्रक्शन उसे बोलूंगा वो आसानी से उसको फॉलो करेगा और कर लेगा। तो क्या करें जिससे वी कैन आस्क कंप्यूटर टू डू व्हाट वी वांट। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करें उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। मीडियम क्या होगा ये भी चर्चा है कि मीडियम क्या होगा। मीडियम इज अ लैंग्वेज दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। अब ये जिस तरह से हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे हमारे पास इंग्लिश है, तो इंग्लिश का एक ग्रामर है,
ग्रामर है वो कुछ एक स्ट्रक्चर बोलता है, सॉरी और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हाँ, रूल्स है, बहुत सारा रूल्स है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे लिखना है, प्रीपोजिशन को ऐसे लिखना है, द का यूज ऐसे करना है, ए का यूज ऐसे करना है। उसी तरह अगर हमारे पास एक दूसरा, इंग्लिश इज आल्सो अ लैंग्वेज, तो अगर हमारे पास एक और लैंग्वेज होता है जिसको मैं बोलूँ सी, या फिर एक और लैंग्वेज होता है जिसको मैं बोलूँ सी प्लस प्लस, या कोई और लैंग्वेज है जिसको मैं बोलूँ जावा, या एक और लैंग्वेज है अपने पास जिसको मैं बोलूँ पाइथन। So like English, like Hindi, these are also languages. These are also programming languages. अब इनका भी अपना ग्रामर होगा, सबका अपना ग्रामर होगा, है ना? जैसे हिंदी का और इंग्लिश का ग्रामर सेम है क्या? नहीं है ना, दोनों डिफरेंट है। वैसे ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना ग्रामर डिफरेंट। ग्रामर डिफरेंट करने का मतलब, मैं इंट्यूटिव नोशन में हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स, देयर आर सम रूल्स। रूल्स किस चीज के लिए? हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज। ठीक है, अभी जैसे देखो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, इफ 5 is greater than 3, sorry, 5 is greater than suppose कोई नंबर x, then say hi, है ना? दिस इज एन इंग्लिश सेंटेंस। अब मैं, ये इंस्ट्रक्शन है, मैं किसी को दे रहा हूँ कि अगर कोई नंबर मैं बोलूंगा, अगर वो नंबर 5 से 12 होगा तो तुम्हें हाई बोलना, अदरवाइज से बाय। क्लियर? एक इंस्ट्रक्शन दिया मैंने तुम्हें दिया ना, अभी मैं बोलता हूँ 2, सो 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट? तो यू शुड, अभी क्या करोगे, देखो ये रूल है तुम्हारे पास, दिस इज रूल विद यू, जस्ट अपने आप को मिमिक करो और मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। बिलीव दैट यू आर ए कंप्यूटर एंड आई एम ए ह्यूमन, आई एम सेंडिंग यू दिस कमांड। तो मैंने तुम्हें एक रूल दे दिया कि देखो ये रूल तुमको फॉलो करना है। चलो अब मैं तुम्हें क्या देता हूँ, इनपुट देता हूँ। मैंने क्या तुम्हें दिया, सो दिस इज, मैं इसे तो मैं लिखूँ रूल 1, यहाँ पे बीच में रूल 1, तुम्हारे पास रूल है। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें बस कुछ इनपुट चाहिए। इनपुट क्या है, तुम्हारे पास x है, तुम मुझे क्या दोगे, आउटपुट, ये विल गिव मी आउटपुट एनीथिंग y। तो मैंने तुम्हें दिया 2, तुमने अपने रूल को चेक किया कि if 5 is greater than 2, yes, तो अब तुम्हारा रिप्लाई होगा राइट। and I have given you 10, so you will check whether 10 is greater than 5, no, you will say y। so इसी टाइप के इंस्ट्रक्शन पे पूरा प्रोग्रामिंग काम करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है ऐसे इंग्लिश के कीवर्ड में नहीं समझेगा हमारा कंप्यूटर। सो व्हाट वी विल से, एक जस्ट मैं बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट बता रहा हूं। वी विल से कि x होगा, हाँ बोलेगा इनपुट x को ले लो, चेक if x is greater than 5, if x is greater than 5, print hi, otherwise or else print y। So this could be an instruction in a programming language. This is not up to the mark, this is not standard representation, but I am giving you the perception idea कि ये इंग्लिश सेंटेंस को एक्चुअली अगर हमें कंप्यूटर्स को समझाना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है। तो चैलेंज यही हो गया ना कि अगर एक वी आर हेयर, कंप्यूटर इज हेयर, और मैं अब यहाँ ये बता रहा हूँ कि वाई वी आर स्टडी, वाई वी शुड स्टडी सी।
हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए, और सी और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब इसको तो चेंज नहीं कर सकती, ये तो इंग्लिश नहीं समझ सकता, हम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं ना। तो जब भी ये कॉमन ग्राउंड बन गया दोनों के लिए कि एक ऐसा चीज है जो वो तो सीख सकता, उसके वो समझ सकता है, तो हम ही उसकी लैंग्वेज को सीख लेते हैं, एंड देन हम जो कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी की लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, तब जाके वो मेरी बात को समझेगा। जस्ट ट्रीट लाइक ए 1 or 2 year किड, जो बस आपका साइन लैंग्वेज को समझता है, वो जस्ट आपके साइन लैंग्वेज को समझता है। आप कुछ बोलते हो, हैंड गेस्चर देते हो, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, वो खुश होता है या वो सैड होता है, बस आपके साइन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। सो द सेम थिंग, आप उसकी लैंग्वेज को समझ के उसकी लैंग्वेज में उसे समझाते हो। ओनली साइन लैंग्वेज, उसको आंख दिखाना या फिर हाथ दिखाना या फिर उसके साथ दौड़ना, सो दे आर सम लेवल ऑफ communication. We are trying to establish the level of communication. Getting my point? Yes, sir. Okay. So I have something in chat. Just ask me anything at this moment, whatever I taught today. Ask me anything you got today and you have something in your mind, because this is going to be only introductory lecture. अभी next से पूरा में technical start होगा, ठीक है? Anything else do you want to ask? No questions? What is the uses of C language, sir? C language. ID we are using, मैं भी बता दूंगा। कोड ब्लॉक अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, that is good. And what is the use? use ही तो बता रहा था कि कंप्यूटर मेरी भाषा नहीं समझ सकता ना, तो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, तो हम इसको सीख लेते हैं और हम कंप्यूटर को बाय मींस ऑफ सी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो अश्विन, दिस वाज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। एंड आईडी वी आर यूजिंग, कोड ब्लॉक में बता रहा हूँ महेंद्र, मैं आप बता दूंगा। आगे वी विल बी यूजिंग टर्बो सी प्लस प्लस, राइट? नो, टर्बो अभी नहीं यूज करेंगे, टर्बो का जमाना चला गया, ठीक है? पठान वाला समथिंग, यूजेफा, वो टर्बो नहीं यूज करेंगे हम लोग। टर्बो जो था वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं यूज करेंगे। and have C language does not have an user interface. लैंग्वेज का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है, वो लैंग्वेज जिसमें लिखते हैं उसका यूजर इंटरफेस होता है। इंग्लिश का कोई यूजर इंटरफेस है क्या? नहीं ना। इंग्लिश कहाँ लिखते हैं? MS वर्ड में इंग्लिश लिखते हैं, है ना? तो जैसे आप चैट में इंग्लिश लिख रहे हो, तो वैसे यूजर इंटरफेस है, ऐसा कोई नहीं है कि यूजर इंटरफेस नहीं है, बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस है। I use it was the answer. So Manav, can I use Virtual Studio Code? अभी नहीं, Virtual Studio is a different सी साहब। So Shreyas, what will be the scope of C in future? देखो जितना सारा भी प्रोग्राम, अगर C अच्छे से आ गया तो बाकी लैंग्वेज सीखना तुम्हारे लिए बस 15 दिन से महीने भर का काम है। तो C is फंडामेंटल लैंग्वेज, ये आपको बताएगा कि एक्चुअली कैसे कंप्यूटर में लैंग्वेज काम करता है, ठीक है? तो सी सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए कोर्सेज में सी होता है। डायरेक्टली 12th में बच्चे पाइथन सीख लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। एक्चुअली कंप्यूटर, मैं जो इंस्ट्रक्शन भेज रहा हूँ उसको कंप्यूटर यूज कैसे कर रहा है, अगर जब तक ये समझ में नहीं आएगा एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर आप नहीं बन सकते। What is DEC C++? DEC C++ is nothing, Ravind. It is Dev C++. Dev C++, DEV C++ is there. तो वो हो जाएगा, उस पे भी काम करता है, लेकिन I suggest to use code block. Ashwin Sharma, there. Ashwin, is there any question that I not asked? Ashwin, what is the use of C language? Then, what do you want to ask? I'm getting. Any, sir, Patanwala is asking, sir, then which software we will use? I'm telling you, na, code block. We will use code block. I will show you how to install and all. Don't worry. Yeah, code block, man, good.
So okay, thank you. No sir, in Java we can create our program interface, does in C interface नहीं होता C में. वो इंटरफेस और ये इंटरफेस अलग बात है. इंटरफेस इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, इसमें हम लोग हार्डकोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की बात ज़्यादा करेंगे सी में, एप्लीकेशंस की बात कम करेंगे, और कंप्यूटर कैसे काम करता है उसको एक्चुअली सी में हम लोग सीखते हैं. मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे हमारा इंस्ट्रक्शन रैम में रहता है, रैम से आउट हो जाता है, क्यों मेमोरी फुल बताता है, क्यों हमारा सिस्टम हैंग करता है. तो इस सब कंपोनेंट को सीखेंगे और साथ साथ देखेंगे कि मतलब सी में उसको देखेंगे. I was asking about typing mistake. maybe it's a basic. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, that's fine. Program we are going to use. Program Ashwin, program we are going to use. Program C programming. C programming में बहुत सारा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर को ऐड करने से स्टार्ट करेंगे, और फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम तक जाएंगे. अटमोस्ट कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स कि फाइल हैंडलिंग भी पढ़ना है हमें, कि फाइल कैसे ओपन होता है, फाइल में कैसे राइट होता है, डायरेक्टली फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल को रीड करना और फाइल को राइट करना. तो वहां तक हम लोग जाएंगे. दिस इज वेरी बिग कोर्स और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. एनीवे, इसमें कितने लोग हैं जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है? बस वही रिप्लाई करो. ओके, 12th में आपके पास बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है. ओके, हैव यू वेंट थ्रू? ओके, बहुत बच्चे हैं. सर वाज इन पीसीबी. पीसीबी तो ठीक है ना. अच्छा पीसीबी, ओके, नो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो बाइनरी यू आर नॉट अवेयर with binary numbers, yeah? But I studied math on my own for NS. No worry if you do not have any exposure of mathematics, because many times we will use the concept of mathematics till class 10th only. So I hope everyone has exposure of mathematics till class 10th. And the moment we will require some concepts from the moderated class, I will discuss things out there. Okay, so thank you all. We will have this fixed timing every day, and I hope that you could attend class on time, be on time, just a minute before, because it's a very big course. So 40 minutes is not more for us, it's quite less. So be on time. We will read slowly, so those who know programming have to have some patience. आपको patience रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं एक जेनरिक लेक्चर लूँगा और बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा. इसलिए आपको थोड़ा सा अगर समझ में आता है तो दैट इज फाइन, जस्ट बेयर विद अस. अच्छा, लिंक एवरीडे का लिंक सेम होगा. दिस इज अ रिकरिंग लिंक, ये पूरे महीने का लिंक है. इस लिंक को आप पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, तो हर दिन वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि शाम को अगले दिन का लिंक भेज दूँ, लेकिन अगर आप इसको एक नोट में सेव करके रख लो देन आल्सो इट विल फाइन. ये महीना इस कोर्स का ये लिंक बदलने वाला नहीं है अनटिल अनलेस कि टाइम टेबल चेंज हो. बुक और ऑल सब कुछ मैं आपको क्लासरूम पे, जिसका भी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे. आपका सारा डॉक्यूमेंट, पीपीटी, डेली का पीपीटी, असाइनमेंट, क्विज और स्टडी मटेरियल सब कुछ वहाँ अपलोड हो जाएगा. आप वहीं से एक्सेस कर सकते हो, वहीं पे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो. वो सारा काम वहाँ से चलेगा. दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस.